دنیا میں سب سے زیادہ ذہین پیغمبر ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ عقلمند وہ لوگ جو پیغمبروں کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن ایک اشکال ہوتا ہے. میں بھی جب بالکل یونیورسٹی میں کالج میں پڑھتا تھا نا تو اس وقت ہمیں بھی کچھ اشکالات ہوا کرتے تھے کہ بہت سے دیندار لوگ پاگل ہوتے کیوں ہیں. یعنی اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ مجنون کا معنی دیوانہ, تو آپ مجنون نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ نبی کو فالو کرنے والے بھی مجنون نہیں ہوں گے, پاگل نہیں ہوں گے. لیکن عجیب بات یہ کہ ہمیں تو دیندار لگتے ایسے ہیں کہ جیسے پاگل. بولو بھائی ہیں, سب دیندار نہیں, بہت سے, اور واقعی وہ پاگل ہوتے بھی ہیں, لگتے نہیں ہیں حقیقت کو پاگل. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ شریعت کے مکمل پیچھے نہیں چلیں گے نا, آدھا چلیں گے, تو آپ پاگل ہوں گے واقعی, کیونکہ آپ پھر الٹی الٹی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے. جیسے نیم حکیم خطرہ جان سنا نا آپ لوگوں نے, نیم حکیم خطرہ جان, تو اس طرح کہتے ہیں نا نیم مفتی خطرہ ایمان, تو نیم مسلمان پاگل, اس کو خطرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شعر کا وزن بنانا مقصد نہیں ہے نا, مقصد ہے کہ بات پوری ہو جائے. تو نیم مسلمان کیا ہے, وہ بھی پاگل. نیم کہتے ہیں آدھا, یعنی تھوڑا تھوڑا, تو آدھا مسلمان بھی پاگل ہوتا ہے. آدھے مسلمان کے آدھے کا مطلب کیا یہ سمجھیں, آدھے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدھے اسلام کو فالو کر رہا ہے. 100% اسلام کو تو بہت کم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جو آدھے کو فالو کر رہا ہے اس کا مطلب وہ آدھا دوسروں سے تو پھر بھی عقل مند ہونا چاہیے, لیکن وہ بھی پاگل ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ آدھے کو فالو کرنا آدھے کو نہ کرنا یہ اتنا برا نہیں ہے. ایک چیز میں اسلام کی آدھی تعلیمات کو لینا آدھی کو نہ لینا یہ تباہ کر دیتی ہے انسان کو, سمجھ رہے ہو. یعنی ایک ہی حکم ہے, اس میں اسلام کی آدھی تعلیمات لی اور آدھی چھوڑ دی تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے کہ میں شادیاں کرتا رہتا ہوں, مثال اسی کی دے دیتا ہوں. آپ نے 4 شادیاں ہمارے بیان سے سیکھا اور آپ نے کہا میں 4 کروں گا, اسلام نے ترغیب دی ہے, لیکن عدل والی شرط اسلام سے بولو بھائی نہیں لی, تو یہ تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دے گا کہ نہیں کر دے گا. یعنی اسلام سے کہ اسلام نے یہ بھی کہا نا کہ حقوق بھی ادا کرے, برابری بھی کرے, یہ والی شرط اسلام کی نہیں لی, شادی والی لے لی, تو یہ تو اسلام کا مذاق بنائے گا. اس سے تو بہتر ہے کہ نہ کرتا, بہتر کیا ضروری تھا کہ نہ کرتا. تو جب ایک ہی حکم میں آدھا اسلام لیا, اسی حکم میں پوری تعلیمات نہیں لی, تو پھر وہ واقعی پاگل ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. وہ پھر مروائے گا, بیڑا غرق کروائے گا اپنا بھی, گھر والوں کا بھی, بچوں کا بھی, معاشرے کا بھی, پھر مذاق بنوائے گا وہ. تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو دیندار ہوتے ہیں اور پاگل لگ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ تو ہمیں اپنی کم علمی کی وجہ سے پاگل لگتے ہیں. پاگل ہم ہوتے ہیں, ہمیں لگتے وہ ہیں. جیسے کہ ہر دیندار ہر لبرل آدمی کو پاگل لگ رہا ہوتا ہے, تو وہ تو خود پاگل ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ لگ رہے ہوتے ہیں پاگل. لیکن بعض دفعہ واقعی میں پاگل بھی ہوتے ہیں, یہ بتا رہا ہوں, وہ سچی مچی کے پاگل ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ آدھی چیز کو لے رہے ہیں, اسی حکم میں آدھے اسلام کو بولو بھائی نہیں لے رہے. پھر یہ لوگ دین کو بدنام بھی کرتے ہیں. یہ لوگ صرف داڑھی ہوتی ہے, ایک لباس لیبل لگا ہوا ہوتا ہے, اب داڑھی تو لے لی, وہ بھی ضروری ہے, داڑھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, لیکن اخلاق وہ نہیں لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ گڑ کھا رہا ہے اور گلگلوں سے پرہیز کر رہا ہے. یعنی گلگلے تو ذرا ہلکی چیز ہے نا, گلگلے پتہ ہے, میٹھے پکوڑے, تھوڑا سا رائٹ آپ کی آواز یہاں بھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, میٹھے پکوڑے جب چینی ڈال کے پکاؤ نا تو میٹھے پکوڑے کہلاتے ہیں, اس کو گلگلے کہتے ہیں. گلگلے اس سے بھی پیٹ خراب ہوتا ہے کیونکہ تیل ہے, بیسن ہے, لیکن گڑ سے تو اور زیادہ خراب ہوتا ہے نا, گڑ تو بہت بھاری چیز ہے, گرم ہوتا ہے. تو اب یہ ایسا مریض ہے جس کا پیٹ خراب ہے, یہ گڑ کھا رہا ہے, جب اس کے سامنے گلگلے رکھے گا تو میرا پیٹ خراب ہے. ایکچولی آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے, تو یہ کیسی ناساز ہے بھائی, تو گڑ کھا رہا ہے, گلگلوں سے کیا کر رہا ہے, پرہیز کر رہا ہے. اسی کی ایک اور مثال دی جاتی ہے, بارش سے بھاگا پر نالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. بارش سے بھاگا کہ کہیں بھیگ نہ جاؤں, اور بھاگنے کے لیے کھڑا کہاں کے ہوا ہے, پر نالے کے نیچے. تو یہی ہو رہا ہے آج کہ شریعت کے احکام میں ایک حکم کو لے لیا جو بہت زیادہ اہم تھا, یقیناً اس سے بھی زیادہ اہم حکم کو چھوڑ دیا. تو یہ ہو رہا ہے آج کل. اس کی وجہ ہے کم علمی, علم نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ ان کی برکت دے, ان کے حوالے سے کسی نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ ایک ہوتا ہے تفقہ فقہ, ایک ہوتا ہے علم, اور ایک ہے حکمت. بڑی پیاری مثال دی, مجھے بڑی اچھی مثال لگی, میں نے کہا یہ بیان میں نقل کروں گا انشاءاللہ. فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ, سینس جسے کہتے ہیں, اور حکمت اور دانائی اس سے بھی, سینس تو لازم ہے نا, واجب ہے کہ آپ میں فقہ ہو, سمجھو. اور ایک علم, یہ پہلا درجہ ہے, سب سے پہلے علم, پھر آتی ہے سینس, کھوپڑی بھی ہو, اور پھر حکمت اور دانائی. تو انہوں نے فرمایا کہ ڈسپرین جو ہے نا ایک ٹیبلٹ ہے, ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ ڈسپرین سے سر کا درد ٹھیک ہوگا. یہ ڈاکٹر کو بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈسپرین کی گولی کھانے سے سر کا درد کیا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. بھائی جان ایک دفعہ نا قیامت آنے سے پہلے مجمع ضرور دکھا دینا بیان. ابھی دبئی میں بھی وہاں بھی لوگ, انڈیا کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں بندہ سامنے بیٹھا بھی ہوتا ہے, آج تک کہہ رہے ہیں کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا یہ کیمرے کہاں کس کو دکھائیں بھائی. تو ایک دفعہ میں نے کہا مرنے سے پہلے انشاءاللہ یا امام مہدی کے آنے سے پہلے ہم پبلک دکھائیں گے. وجہ اس کی ہے کہ کیمرہ تھوڑا سا گھما دیا نا, پھر 1 گھنٹہ لگے گا اس کو واپس اپنی جگہ پہ لانے میں. تو ایک دفعہ یہ نوٹ کر لیں, امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک دفعہ لازمی دکھانا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا بات چلی تھی یار, ٹیکنیکل بات چل, ہاں ڈسپرین کی مثال دے رہا تھا. یہ جو ڈسپرین ہے یہ سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے, یہ علم ہے, نالج کی بات ہے نا کہ ڈسپرین سے کیا ہوتا ہے, سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے. تو ایسے ہی مسائل, شریعت کے مسائل میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ڈسپرین سر کا درد کیسے ٹھیک کرتی ہے. یہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے, عام آدمی کو پتا نہیں ہوتا. یہ کیسے, اس میں کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سر میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے جس نے میڈیکل سائنس باقاعدہ پڑھی ہوتی ہے. تیسرا درجہ ہے حکمت, کہ کس نے سر کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنی ٹیبلٹ کھانی ہے, کس کو ڈوز کتنی دینی ہے, دینی بھی ہے کہ نہیں دینی. ہر سر کے درد کی, ہر آدمی جس کے سر میں درد ہے اس کو ڈسپرین نہیں کھلائی جاتی, اور جس کو کھلائی جاتی ہے تو سب کو ایک جیسی مقدار میں نہیں کھلائی جاتی. یہ کیا ہے, حکمت. یہ سائنس سے اوپر کی چیز ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی, کہ کس کو کتنی ٹیبلٹ دینی, کس کو کتنی ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ چیزیں کتابوں میں, یہ تیسری چیز کتاب میں نہیں ملتی. یہ ڈاکٹر کا تجربہ, اس کی اپنی عقل, خود بھی ڈسپلین کھا کے بیٹھا ہے یا بغیر ڈسپلین کے بیٹھا ہوا ہے, یہ سب چیزیں یعنی وہ کرتی ہیں. تو یاد رکھو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ نہ خود پتہ ہے اور نہ ایسے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس کو پتہ ہے. صرف ظاہری علم ہے, ظاہری علم.
वो ये जायज़ है वो नाजायज़ है, ये हदीस है वो फलानी आयत है, और वो फिर उस पर फतवेबाजी थोपते रहते हैं और फिर ज़ाहिर है अज़ल्लू अज़ल्लू अज़ल्लू, खुद भी गुमराह और दूसरों को भी गुमराह। उलमा को पता होता है, जिनमें हिकमत है, जिन उलमा में, उनको पता होता है कि ये हदीस इस मौके के लिए नहीं है, इसका कोई गलत फ़ायदा उठाएगा। जैसे ना डिस्प्लिन तो है, सर का दर्द तो ठीक करती है मगर आपके लिए नहीं है, पैनाडोल से तबीयत ठीक होती है मगर हर एक के लिए नहीं है, तो ऐसे बहुत हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। एक साहब ने मुझसे सवाल किया, बड़े वो परेशान थे कि यार ये क्या बात है, हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक कुत्ते को पानी पिलाने पर एक फाहिशा औरत की मग़फ़िरत कर दी। कुत्ते को पानी पिलाने पर मग़फ़िरत, सारी ज़िंदगी गुनाह, कुत्ते को पानी पिलाने पर क्या कर दिया। और दूसरी तरफ हदीस में आता है कि एक बिल्ली को भूखा मारने पर सारी नेकियां, अरे वो मशहूर हदीस है ना, एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया, ना खिलाती थी ना पिलाती थी, वो बिल्ली भूख से तड़प तड़प के मर गई, अल्लाह ने उसको आज़ाब में डाल दिया, सारी नेकियां ज़ाया हो गई। अब वो परेशान करें यार, वो तो बस गोया वो ये कहना चाहते थे उधर तो एक अंधी है, बस अल्लाह जिसको चाहे उठा के जन्नत में डाल दे, जिसको चाहे उठा के बख्शिश पे आएगा तो हमारी एक नेकी कबूल कर लेगा, और अगर उसने अज़ाब भी देना होगा तो हमारी सारी नेकियां धरी की धरी को ये गुनाह पड़ गया, क्या कर देगा, जहन्नम में। तो उनके लबो लहजे से लग रहा था कि अमल से क्या क्या हो रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। ये हदीस उनमें अमल का जज्बा कम कर रही है कि यार उधर का तो कोई लॉ नहीं है, कानून नहीं है, बस फिर उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी है, फिर लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह फरमाते हैं जिसको चाहूंगा माफ करूंगा, जिसको चाहूंगा अज़ाब दूंगा। तो जब वही उसी पर है तो हमारा अमल किस काम का, क्या ख्याल है भाई, आ रहा है ना समझ में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वही है, इल्म है, हिकमत नहीं है। असल में ये वही डिस्प्लिन की गोली है ना, जिसको नहीं खानी थी उसने खा लिया है, ठीक है ना, जिसको नहीं खानी थी उसने खानी। तो फायदे की वजह क्या हो रहा है, एक आदमी का खून वैसे ही बहुत पतला है, वो बिल्कुल पानी की तरह खून है, वो वैसे ही मरने वाला है, उसको डिस्प्लिन खिलाओगे तो और क्या हो जाएगा, पता वो तो मर जाएगा। जो हदीस की जो जानते हैं वो बताते हैं, किसी हिकमत वाले से पूछें वो तो वो कहेगा कि भाई दोनों ये हदीसें अमल में और बढ़ाने के लिए हैं, अमल को कम करने के लिए नहीं है। सहाबा इस हदीस को सुनकर उनका अमल का जज्बा बढ़ा था, कम नहीं हुआ था। कैसे, एक हदीस जो है वो गुनाहगार को सुनाने की है, हम वो नेक लोगों को सुना देते हैं, एक नेक लोगों को सुनाने की है वो हम किसको सुना देते हैं, गुनाहगारों को। जो इसके सामने पेश करने की, जैसे शुगर का मरीज है उसके सामने पेश करने की जिसकी करेले है भाई, और एक आदमी में फैट है ही नहीं, शुगर भी नहीं है, वो बेचारा शुगर की कमी से मर रहा है, उसके सामने रखने थे लड्डू, तो जिसके सामने लड्डू रखने थे उसके सामने रख दिया करेले। वो पहले ही शुगर लेवल कम है, वो करेले खाएगा तो इन्ना लिल्लाह होगा कि नहीं होगा, और जिसको खिलाने थे लड्डू उसको करेले खिला दिया, उसको करेले खिलाने थे उसको क्या खिला दिया, लड्डू, दोनों का इन्ना लिल्लाह, क्या ख्याल है भाई, इन्ना लिल्लाह हो जाएगा दोनों का। तो ये जो हदीस है ना कि फाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया और अल्लाह ने बख्श दिया, एक रिवायत में मर्द आता है मर्द ने पानी पिलाया, बहरहाल जिसने भी पिलाया गुनहगार था, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। ये असल में गुनहगार के सामने पेश करने की हदीस है, और हर गुनहगार के सामने नहीं, वो गुनहगार जो अब इस नाउमीदी में आ गया है और अब वो नेकी करने के लिए तैयार है नहीं, वो कह रहा है यार मेरे तो अमाल में गुनाह ही गुनाह है, मैंने अगर एक नेकी कर ली तो मुझे क्या हो जाएगा, मैं कौन सा जन्नत में जाऊंगा, तो अब छोड़ो मैं बाकी जिंदगी भी किसमें गुजारता हूं, गुनाह में। तो उसको बताया जा रहा है भाई बाज मरतबा, हमेशा नहीं, एक नेकी काम आ जाती है, इसलिए नेकी का कोई मौका अगर मुयस्सर है तो हाथ से जाने ना दो, तो अमल पे आएगा या पीछे रहेगा, आ रहा है अमल पे। तो उसको बताया कि बाज़ दफा एक नेकी पे बख्शिश हो जाती है तो और ज्यादा से ज्यादा नेकियां करो, ये तो बख्शिश का चांस और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको इधर लाया जा रहा है। और जो गुनाह जो नेकी करने वाले हैं बाज़ दफा वो इतराने लगते हैं, तकब्बुर में आ जाते हैं, यार हमारे अमाल में तो कोई गुनाह है ही नहीं, हम तो सीधा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में। तो अब जब बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे तो हमने दो चार गुनाह कर लिए तो क्या हो गया, हमने अगर उसकी जेब से पैसे निकाल लिए, हमने तो सारी माशाल्लाह विरासत भी नहीं खाई किसी की, और सारे हमेशा एक नंबर हैं, आज अगर हमने किसी को चूना लगा दिया 150 रुपए पान गुटके किसी की खा लिए, आज हमने अगर एक दफा छोटा लगा लिया तो दो चार घूट पी लिए तो क्या हो गया, दुनिया तो बाल्टियों की बाल्टियां पी जाती है, आज हम भी जरा दो चार से क्या होता है, कहते हैं ना लोग भाई, दो घूट पीने से क्या होता है, एक दफा पाइप के नीचे हम बैठ के थोड़ा सा हीरोइनों के साथ एंजॉय कर लिया तो क्या हो गया। तो उनको बताया जा रहा है कि किसी पे जुल्म कर लिया, किसी जानवर को बिला वजह मार दिया, तो उनको बताया जा रहा है कि भाई तुम्हें अल्लाह ने नेकी की तौफीक दी है, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसी पे कायम रहो, ये सोच के गुनाह मत करो कि हमें क्या होगा। बाज़ दफा एक गुनाह भी, बाज़ हमेशा नहीं होता, बाज़ दफा एक गुनाह वाले जान बन जाता है, जैसे उस शख्स का बन गया, उस औरत का बन गया जिसने बिल्ली को बांध के भूखा रखा। तो अब सहाबा जब ये हदीस सुनते थे तो उनमें अमल का जज्बा बढ़ता था, और हम जब सुन रहे हैं अब जब फिर भाई यशा जिसको चाहेगा बख्श देगा, ये तो वो मामला खराब हो गया। तो असल में हदीस का मतलब ये हुआ कि एक नेकी पे अल्लाह बख्श सकते हैं तो बार बार नेकियों पे क्यों नहीं बख्शेंगे, और एक गुनाह पे अल्लाह बर्बाद कर सकते हैं तो बार बार गुनाह करोगे तो बर्बाद क्यों नहीं होगे। तो मतलब ये कि जो नेकियां कर रहा है वो करता चला जाए, और जो गुनाह कर रहा है वो गुनाह से बचने की कोशिश करे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। और मामला हमारे यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यही वजह है कि अल्लाह की रहमत की हदीसें गुनाहगारों को सुनाई जा रही हैं जो तौबा करने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि उनके लिए थोड़ी है, उनके लिए तो अजाब की वईदें हैं। ये जो आता है ना ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, ये उनके लिए है जिनका आगे कुरान में तज़किरा है, व अनीबू इला रब्बिकुम, कि अपने रब की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, व अस्लिमू लहू, अपने आप को उसके हवाले कर दो। ऐसे गुनाहगारों को कहा जा रहा है कि अब आ जाओ, अब अल्लाह की तरफ आ जाओ, माजी को भूल जाओ। और हमारे यहाँ जो आयत बताई जाती है कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, ये उन लोगों को जो गुनाह कर रहे हैं और आइंदा भी करने का प्रोग्राम है, करते रहो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, ये तो गलत है, ये कहां की कहां लगा दी। तो दीन जो है ना, पूरे दीन पर इंसान चले तो फिर इंशाल्लाह फिर वो पागल नहीं कहलाएगा, और अगर फिर ऐसे शख्स को कोई पागल कहेगा तो खुद पागल होगा, समझ रहे। तो हम में से बहुत से लोग आधे पे चल रहे हैं, आधे पे नहीं चल रहे। दूसरी एक अहम तरीन बात याद रखें, ये बहुत अहम मसला है कि हमारे यहाँ किसी की जो बुराई है ना, बुराई उसको नापने का वो मयार नहीं है जो अल्लाह उसके रसूल का मयार है। हमारे यहाँ जुर्म को हर इंसान अक्ल तरीके से नापता है, समझे, उसकी कीमत लगाता है कि इतना बड़ा जुर्म है कि कहाँ जाएगा, जहन्नम में। देखें किसी भी हर मुल्क में सिग्नल तोड़ने का जुर्माना अलग है, ऐसे ही है ना। पाकिस्तान में अगर आप सिग्नल तोड़ें तो चालान अलग किस्म का होता है, दुबई में तोड़ दें तो बड़ा गलत हो गया आपका, अमेरिका में तोड़ दें तो अलग सजा है, हर मुल्क में बंदा मारने की अलग सजा है, हर मुल्क में बंदा मारने की अलग सजा, रिश्वत की अलग, हर मुल्क की अलग। तो हर कंट्री ने, उनकी असेंबली ने या उनके जो कानूनदान लोग हैं उन्होंने अपने लिहाज से जो है ना जुर्म को डिफाइन किया हुआ है कि भाई ये वाला जुर्म जो है ये इतना भारी है और इसकी सजा इतनी होगी। तो उनके जो भी माहिर बैठते हैं सिग्नल तोड़ा तो इसका मतलब ये लोगों की जान से खेल रहे हैं, लोगों की जान से खेल मतलब बंदा भी जा सकता था, बंदा भी जा सकता था, मतलब छोटा बड़ा जुर्म नहीं, लिहाजा उस पर इतना भारी भरकम जुर्माना डाल देते हैं, या वो आदमी कहता है दोबारा नहीं तोड़ूंगा कभी,
और बाज़ लोग दूसरे स्टाइल से सोचते हैं कि भाई सिग्नल तोड़ा है तो बंदा थोड़ी तोड़ा है, बंदे को थोड़ी मारा है और इसकी नीयत भी नहीं थी और मारा भी नहीं बंदा, या तो मर जाता बंदा, तो तोड़ के भागा है ना, तो ठीक है 50 रुपये लो निकलो यहाँ से। तो यानी हर आदमी अपने हिसाब से, तो आप जिसकी रियासत में होते हो उसके कानून के हिसाब से जुर्म को तोलते हैं, वहीं के कानून के हिसाब से। इसी तरह याद रखें ये जमीन किसकी रियासत है? अल्लाह की। तो जब अल्लाह की नाफरमानी होगी तो उस जुर्म को उसी हिसाब से तोला जाएगा। अल्लाह ने इसको कितना बड़ा जुर्म करार दिया है, उसको अकल तरीके से बोलो ना भाई, नहीं तोला जाएगा, उसको अपने हिसाब से तोला जाएगा, यानी अल्लाह के हिसाब से। आप अगर किसी का माल छीनते हैं, किसी का पैसा चुराते हैं, वो 100 रुपए हैं, जुर्म है, 1 लाख रुपए चुराए बड़ा जुर्म। लेकिन अगर आप सगे भाई या सगी बहन से इस तरह धोखा देते हैं तो है वो लाख रुपए, मगर अल्लाह के यहाँ ये जुर्म बड़ा है, दुगना जुर्म है, रिश्तेदारी तोड़ने का भी और पैसे चुराने का भी। हालांकि दुनिया में सजा दोनों की एक जैसी है। क्या ख्याल है भाई? एक जैसी सजा है। आखिरत में एक जैसी नहीं है, आखिरत में एक जैसी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ रिश्तेदारों का हक आम लोगों से बोलो भाई ज्यादा है। इसी तरह एक और अहम बात याद रखें कि जब हम किसी के जाती गुनाह की वजह से बुरा कहते हैं तो लिबरल लोग, जो लिबरल से नाम लिहाज लिबरल जो बनते हैं, बड़े फंटर बनते हैं ना, लेकिन काम उनकी अकल वाले नहीं है, शो ये करते हैं कि हम अपनी अकल पे चलते हैं। मैंने एक बयान में लिबरल का बताया था ना, लिबरल असल में तो इंग्लिश में एक अच्छा लफ्ज़ है, उस लिहाज से साहब कराम लिबरल थे, क्योंकि साहब कराम ने अकल को फॉलो किया, मुआशरे को फॉलो नहीं किया। अकल ने बताया कि सच्चे नबी हैं तो फिर इनके पीछे चलो, तो इसलिए ये लिबरल के साथ में नाम लिहाज लिबरल लगाया करूंगा, ठीक है, जो बनते हैं या इस्लाम में जिनको लिबरल कहा जाता है। तो क्या कहता है यार, तो दिमाग में बहुत घूमना, थकावट बहुत है ना, वो बता था नहीं अहम बात क्या थी, जल्दी बताओ, वो पक्का में यार जी, इतनी अहम टेक्निकल किस्म की बात आई थी दिमाग में जी, आप बता रहे हैं जी, बता नहीं रहे क्या इतनी अहम बात आई थी, देखो किधर निकल गई बात। का क्या है? हाँ, अपने हिसाब से हर आदमी जो है ना अपने हिसाब से तय करता है कि इस जुर्म की नौयत कितनी है। हाँ, अब मैं ये कर रहा था कि कुछ जराइम ऐसे हैं कि जो बेदीन लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, वो उसको जुर्म कहते हैं अपने हिसाब से। मिसाल के तौर पर मुआशरे में कोई बेहयाई करे, कोई जिना करे, कोई बदकारी करे, तो लिबरल लोगों के यहाँ ये जुर्म उस वक्त है कि जब कल्चर इसे कबूल ना करता हो। अगर कल्चर इसकी इजाजत देता है तो फिर बेहयाई क्या ख्याल है भाई? नहीं है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में अगर कोई बॉयफ्रेंड रखता है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखती है, कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि सोसाइटी इसकी इजाजत देती है। हमारे कंट्री में अगर कोई इस तरह से रखेगी तो लोग उसको बुरा कहेंगे। जो लिबरल लोग हैं वो क्यों बुरा कहेंगे? हमारी सोसाइटी इसको कबूल नहीं करती, गलत हरकत है, यही होगा ना, इससे आगे नहीं होगा। तो जो सोसाइटी को असल समझते हैं वो तो फिर सोसाइटी की कसौटी से परखते हैं कि इस सोसाइटी में ये जुर्म कितना बड़ा समझा जाता है। ये बहुत अहम पॉइंट की बात है, इसको अच्छी तरह खोपड़ी में बैठा लो, ये बड़े मसाइल पैदा कर रही है ये चीज, ना समझने की वजह से बहुत फसाद हो रहे हैं। तो जो दीन को नहीं मानते वो सोसाइटी की कसौटी पे परखते हैं कि ये जुर्म है भी या नहीं है तो कितना बड़ा है। समझ में आ रही है बात? हम जो मजहब को फॉलो करते हैं, हम सोसाइटी को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते, हम असल में किसको लिफ्ट कराते हैं? सबसे पहले कहते हैं इस्लाम क्या कहता है। तो याद रखो, जब इस्लाम की कसौटी पे परख के किसी को मुजरिम कहा जाएगा तो फिर जब तक इस्लाम उसे मुजरिम कहेंगे, जब इस्लाम मुजरिम कहने पर पाबंदी लगा देगा तो आप उसको मुजरिम बोलो भाई नहीं कह सकते। इसी से और इस्लाम ने क्या कहा है कि जो शख्स तौबा कर ले, कितने बड़े बड़े गुनाह हो उसकी जिंदगी में, जब तौबा कर ली अब आप उसके माजी की वजह से उसे मुजरिम बोलो भाई नहीं कह सकते। कितने बड़े जराइम किए उसने, जब तौबा कर ली तो क्या है? माफ। रही बात कि सच्ची तौबा की है ये झूठी, ऐन मुमकिन है झूठी तौबा कर रहा हो, उसके बारे में इस्लाम ने बता दिया, साफ बता दिया कि हम जाहिर के मुकल्लफ हैं, दिल चीर के देखने के मुकल्लफ नहीं है। अब मैं हैरान होता हूं, बहुत बाज लोगों से माजी में बड़े बड़े गुनाह हुए, जिना हुआ, उनकी तस्वीरें वाले लोग ये हो गया, वो कह रहे भाई मैं तौबा कर ली मैंने, लोग माफ करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं ये झूठ है, ये तो अपने यूं करने के लिए, तो यूं करने के लिए, वैसे करने के लिए, वैसे। आप कैसे कह सकते हो? आप तो अल्लाह की वजह से मुझे कह रहे हो ना उसको, तो उसी अल्लाह, वो अल्लाह आपको मुझे कह रहा है कि अगर तुमने इसको ताना दिया या इसकी तौबा में तुमने ये कहा कि ये झूठ है। ये अभी माजी में कोई अदाकारा के बारे में मैं तो सफर पे था, तो बहुत से लोगों की कॉल्स आई कि किसी की फोर्स तस्वीरें आ गई हैं, वो बेचारी रो के ऐलान कर रही है गलत हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, मैं माफी चाहती हूं, अल्लाह भी माफ करने वाला है, क्या कर रहे हैं? और लोग फिर भी नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि ये जो है ना ऐसे ही है, उसको चस्के ले लेके फैला रहे हैं उन वीडियोस को। मैंने वो वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखी, इसलिए देखना गुनाह इन चीजों का। किसी ने जब कह दिया कि भाई मुझसे गलती हुई है, इसका मतलब अब वो इसको वायरल करना वो पसंद नहीं करता, चाहे मर्द हो या औरत हो, वो ना पसंद करता है ना करती है। तो आपके लिए देखना जायज? भाई एक आदमी की काबिल एतराज हालत में वीडियो आ गई, उसको एहसास हुआ गलत है, अब वो पाबंदी लगा रहा है, तो आपके लिए देखना जायज है भाई? बोलो, एक आदमी वॉशरूम में नहा रहा है, कुंडी लगाना भूल गया, तो आपके लिए दरवाजा खोल के देखना जायज है? अब आपको तुमने कुंडी क्यों लगाई? तुमने कुंडी क्यों लगाई? या चलो जानकर नहीं लगाई कुंडी, इसलिए कि वो बहुत ही मॉडर्न था, हो गया यार कुंडी क्या छोटी हरकत है, कुंडी लगाई, गोरे की तरह नहा हो, देख लिया तो क्या हो गया, नहाते नहाते उसको तौबा की तौफीक होगी यार, इतना भी मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। तो अब आप उसकी तौबा कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो, कह रहे भाई मैं तौबा करूंगा, आपको नहीं, मैं तो देखूंगा, मैं तो खिड़की से झांक के देखूंगा, मैं तो रोशनदान से झांक के देखूंगा। तो इसका मतलब इससे पहले तो वो बुरा था, अब इस अमल के बाद जब आप उसकी वीडियो देखोगे या आप उसको झांक के देखोगे तो कौन बुरा है? अब आप बुरे हो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं जो हमारे माशरे में हो रही हैं। लोग दिलों को टटोलने की कोशिश करते हैं, ये सच्ची तौबा है या झूठी तौबा। वो भाई हमें सच्ची झूठी में जाने की इजाजत नहीं है। देखो क्या नबी के दौर का वाकया सही हदीस में मिलता है कि गैर मुस्लिम मुकाबले के लिए आए और जब सहाबी की तलवार उनके गर्दन पे पड़ने वाली थी ना, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, सहाबी रसूल ने गर्दन उड़ा दी, कत्ल कर दिया। बाद में जब सहाबा ने बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इन्होंने इनको कत्ल किया, हालांकि कलमा पढ़ चुके थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से पूछा, तो उन्होंने फरमाया या रसूलुल्लाह इन्होंने तो मौत के डर से कलमा पढ़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गजबनाक हुए, फरमाया हल्ला शक़क़्त क़ल्बा, तुमने उसके दिल को चीर के क्यों नहीं देखा? दिल को चीर के देखते कि दिल से पड़ रहा है या ऊपर से पड़ रहा है, फिर फैसला करते ना। दिल चीरना तुम्हारे इख्तियार में है नहीं, तुमने कैसे कह दिया कि मौत के डर से कलमा पढ़ा है? इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हुए, बार-बार ये अल्फाज आए हल्ला शक़क़्त क़ल्बा, हल्ला शक़क़्त क़ल्बा। अब देखो यहां तो 99.9% इंसान का दिमाग इसी तरफ जाता है कि मौत के डर ही से पड़ा है। अरे मैं भाई सवाल पैदा होता है ना कि इतने दिनों से कहां थे भाई, कलमा क्यों नहीं पढ़ा? फिर मैदान जंग जब दोनों तरफ सफेद थी उस पर पढ़ लेते, और फिर जब लड़ाई शुरू हुई उस पर पढ़ लेते, जब तक बिल्कुल ऐसी वक्त जब मेरी तलवार की जद में आ गए तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि मौत के डर से पड़ा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, हम दिल को काट के देखने के मुकल्लफ नहीं है। तो याद रखो किसी के गुनाह पे चस्के न लिया करें, जो चस्के ले रहे होते हैं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तुज़हिर शमातत अल अखीक, अपने मुसलमान भाई या मुसलमान बहन भी इसमें दाखिल है, इनके किसी बुराई को देख के आर ना दिलाया करो, खुश ना हुआ करो। शमाता कहते हैं किसी को मुसीबत देख के खुश होना। फरमाया इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान आगे हदीस के मुकम्मल अल्फाज हैं कि अल्लाह उसे उस बुराई से बचा ले और तुम्हें मुब्तला कर दे। अगला नंबर तुम्हारा होगा। फिर चस्के ले होते हैं, तौबा मान लें कबूल करने के लिए तैयार है ही नहीं, हर चीज की तावील
भाई कोई कह रहा है कि मुझसे गुनाह हुआ था, उसकी तस्वीर वायरल हो गई, भाई मैं तौबा कर चुका हूं, छोड़ चुका हूं, एप्रिशिएट करना चाहिए ना। चले जी माजी में जो हो गया, अल्लाह ने आपको तौबा की तौफीक दी, माशाल्लाह बहुत अच्छा। ना ना ना, अब ऐसा ऐसा ही है, ठीक है। अबे बाद में सब यही बोलते हैं, अबे सब यही। और भाई अगर हकीकत में भी झूठी तौबा की है, आपको अल्लाह क्या कह रहा है कि उसकी हकीकत में जाने की चंदा जरूरत नहीं है, आपने यही बोलना भाई सच्ची तौबा है, आपने यही बोलना, अल्लाह जाने वो बंदा जाने, उसका आपस आखिरत का मामला है। ये उन गुनाहों के मामले में जो किसी के निजी गुनाह होते हैं। हाँ, हक दबाया हुआ है किसी का, समझ रहे हो, वो हक बहरहाल देना पड़ेगा। ये कोई कौमी मुजरिम है, ऐसे जराइम करके बैठा है कि इसको माफ कर दिया तो उसका दोबारा नुकसान उम्मत को होगा। जैसे डाकू की भी हमें कुरान में मिसाल मिलती है। डाकू जो है ना, डाकू, अब एक आदमी ने दर्जनों लोगों को कत्ल कर दिया और पकड़ाई में नहीं आ रहा था, अब पकड़ाई में आया तो भाई मैं तो तौबा कर चुका हूं, कहते चले चुके, आप एक्चुअली 25-30 बंदे मार दिए आपने और आपने करोड़ रुपए खा लिए और गरीबों की ज़कात भी खा ली, तो हमने जी मुफ्ती साहब का बयान सुना कि जो तौबा कर ले तो उसके ज़ाहिर को कबूल करना चाहिए, तशरीफ ले जाइए। बल्कि तौबा के 2 हार भी उसके गले में हमने पहना दी और नाम दे दिया तौबा खान कि भाई थप्पा लग जाएगा, ये क्या है। वो क्या है, बड़ा अच्छा मुल्क है, दोबारा 5-6 बंदे मार दिए उसने और ये किया और वो किया, फिर पकड़ाई में आ गया, फिर कह रहा भाई मैंने क्या कर लिया, तौबा कर लिया। तो इन जराइम के बारे में नहीं है, इसलिए कि ऐसे लोगों को छोड़ने में नुकसान किसका है, लोगों का। तो यहाँ के बारे में दूसरी हदीस है, ला युल्दगुल मुमिन मिन जहरिन मरतैनी, मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। यहाँ अक्लमंदी दिखानी है। एक है किसी का निजी मामला, वो क्या कर रहा है, जिना किया उसने, बेहयाई की, शराब की, उसका निजी मामला है, इस गुनाह पे पर्दा डालने का हुक्म है। और अगर पकड़ा जाए तौबा का ऐलान करे तो तौबा को मानने का हुक्म है। 100 दफा तौबा करे, 100 दफा तोड़े, 101 दफा में तौबा करेगा तो हमें पिछले 100 के बारे में ये नहीं कह सकते, हमें उसमें भूलना है। 100 दफा पकड़ा गया, 101 दफा में तौबा कर रहा है तो हमें ये हुक्म है कि हम 101 दफा में कहीं सच्ची तौबा कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। लेकिन जो ऐसे जराइम होते हैं जिससे माफ करने में लोगों का नुकसान है, तो उसमें शरीयत में ये फिर नहीं है, उसमें ये कि एक सुराख से 2 दफा नहीं डसे जाते। वहां दूसरी हदीस है, मैं अक्सर सुनाता रहता हूं, एक जासूस पकड़ा गया गैर मुस्लिमों में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया इसको कत्ल कर दो, उसने कहा या रसूलल्लाह मेरी बेटियां हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरस खा के उसको छोड़ दिया। दोबारा पकड़ा गया, हालांकि उसको चाहिए था अब जासूसी ना करता, जासूस से तो लोगों को कत्ल करवा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उस जब पकड़ा गया नबी के सामने लाया गया, उसने फिर कहा मेरी 6 बेटियां थी गालिबन उनकी, तो आपने फरमाया ला युल्दगुल मुमिनु मिन जहरिन मरतैनी, मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। अब नहीं, जो सियासी लीडर होते हैं ना, जो करप्शन में पकड़े जाए, करप्टरीन हो, वो दोबारा वोट मांगे और कहना करप्शन से तौबा कर ली, बोले भाई हमें नहीं पता आपने किया कि नहीं किया, अल्लाह माफ कर देगा, हम दोबारा आपको वोट देने की जिसारत नहीं कर सकते, भाई हमने एक दफा भुगत लिया है, ठीक है ना। यहाँ नहीं है, तो हर चीज का एक मौका होता है ना, मैंने बताया डिसिप्लिन किसको खिलानी है किसको नहीं खिलानी, किसको करेले खिलाने हैं, किसको लड्डू खिलाने हैं, किसका शुगर लेवल ऊपर ले जाना है, किसका नीचे लेके आना है। वैसा ना शुगर के मरीज करेले खाना शुरू करने जाके, ये मिसाल दे रहा हूँ, जो भी खाना है डॉक्टर से पूछ के खाएं, ठीक है। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, फिर भी आराम ना आए करीब मालिश से रुजू करें। तो अब डाकू के बारे में मिसाल दे रहा था, देखें कैसी शरीयत ने हुक्म दिया है। फरमाया कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु व यसअऊना फिल अर्दि फसादन अन युक़तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्द। अब हदीस आयत नंबर तो मैं पेश नहीं कर रहा, पूरी आयत पढ़ रहा हूं। औ युनफ़ऊ मिनल अर्द, फरमाया कि जो लोग जमीन में फसाद में चाहते हैं, क्यों, तो उनका फसाद यही है, एक होता है चोर, जिसको अरबी में सारिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सारिक। वो जब पकड़ा जाए और अदालत में साबित हो जाए कि इसने चोरी की है, तो शरीयत क्या कहती है, इसका हाथ काट डालो। तो क्या मैं तौबा करता हूं, मैं माफी मांगता हूं, ठीक है, आखिरत में माफ हो जाएगा, दुनिया की सजा जारी होगी, क्योंकि हम अगर अभी आपको छोड़ दें तो फिर पता नहीं आपने दिल से किया या ऊपर से किया। तो ऐसा ना दोबारा चोरी करें, तो हम पब्लिक को आपकी भेंट नहीं करा सकते, आपकी तौबा की भेंट, ठीक है ना। दिल का हाल नहीं जानता है, जब तक गिरफ्तार नहीं हुए तो ठीक है, पकड़े गए हो और साबित हो गया तो हाथ कटेगा। तो चूंकि ये कौन का मुजरिम है ना, तो इसी तरह एक होता है डाकू। चोर में और डाकू में क्या फर्क है, चोर चुपके से माल लेता है और पतली गली को तलाश करता है, चुपके से भागो। डाकू हमेशा चौड़ी गली से आएगा, वैसे नहीं आएगा यहाँ से निकलो, उधर से लोटे में से निकल के आया, उधर से लैट्रिन में दरियाफ्त हुआ गया, वो घर में शादी में गए तो उधर से चुपके से फलांग के आया और फिर यूं खिड़की से हाथ डाल के, ऐसा नहीं करता। वो आता है बंदूक लेके, तो ये बड़ा मुजरिम हुआ ना। क्या ख्याल है भाई, वो आता है बंदूक लेके, उसके साथ लोग होते हैं और वो बंदे मारने में आर महसूस, चोर तो अपनी जान बचा के भागने की फिक्र में होता है। इसके ये गोली ट्रैगर जो है इसके हाथ पे होता है, चंद पैसों के पीछे लोगों की जान ले लेता है। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया इल्लल लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम, इनकी भी तौबा कबूल है, बशर्ते कि गिरफ्तारी से पहले तौबा कर लें। अगर ये डाकू गिरफ्तारी से पहले तौबा कर ले, और उलमा कहते हैं तौबा सिर्फ जबान से ना करे बल्कि उसके अमल से भी लगे कि ये तौबा कर चुका है, अमली तौर पर उसके आसार जाहिर हो गए, भाई आप इसका उठना बैठना डाकुओं में नहीं है, नमाज रोजे का माशाल्लाह माशरे के शरीफ इंसान लग रहा है, पुरानी जिंदगी छोड़ दी है, तो भी अल्लाह फरमाते हैं कि उस पर डाकू की सजा नाफिज नहीं होगी। और डाकू की सजा क्या है, हाथ पांव काटे जाए, दाएं हाथ और बायां पांव, और सूली पर लगा दिया जाए, और ऐसी जगह लगाया जाए जो पब्लिक प्लेस हो। इस्लाम में बंद कमरे में फांसी का तस्वर नहीं है, ये गैरों से आई है। इस्लाम में बंद कमरे में कोई सजा नहीं है, जो है खुलेआम है, समझ रहे हो। इस्लामी सजाएं खुलेआम होती हैं ताकि पब्लिक डरे, बंद कमरे में उस बेचारे के साथ क्या हो रहा है क्या पता किसी को, तो ये फांसी में लगा के उसकी ज़बान बाहर निकल आती है, इतनी शदीद तकलीफ होती है, इब्रत लोगों को नहीं होती। इस्लाम ने कहा खुलेआम गर्दन उड़ाओ, तकलीफ मुझे को नहीं होगी, वो तो क्या दुनिया से, क्योंकि सबसे आसान मौत क्या है, गले की रगड़ जाना। सबसे आसान मौत क्या है, गले की रगड़ जाना, क्योंकि जब तलवार लगती है ना तो वो जो दिमाग और जो बॉडी का कनेक्शन है ना वो सबसे पहले कटता है। जब कनेक्शन ही खत्म हो गया तो दर्द का एहसास खत्म। अब बॉडी तड़पती बहुत है, ब्लड निकलता है, वहशत बहुत होती है, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं होती, बस मुझे ये नुकसान हुआ जिंदगी से महरूम। लेकिन पब्लिक को इब्रत ठीक ठाक हासिल होती है। वो जब देखते हैं ना सर उधर पड़ा हुआ है और धड़ उधर तड़प रहा है। वो एक साहब ने सऊदी अरब में अपनी आंखों से देखा, पहले जब बहुत ज्यादा किसास के वाकयात होते थे, अच्छा खासा सेहतमंद आदमी था, कह रहा है मैंने सऊदी अरब में एक की गर्दन उड़ाते हुए देख लिया जल्लाद को, कह रहा है 2 घंटे में अपनी जगह खड़ा हुआ कांपता रहा हूं, ऐसे हिल रहा हूं। तो वो ऐसी इब्रत होती है कि कत्ल की तरफ लोग नहीं जाते, भाई नहीं हमने ये काम नहीं करना, ये होता है। जबकि फांसी में देख लो किसी को इब्रत होती है बंद कमरे में, और उसमें जो गुजरती है ना जिसको फांसी दी जाती है वही जानता है। इतनी शदीद, क्योंकि गला घोट के मारना, काफी देर तक वो फंदे पे लटक के तड़पता रहता है, उसकी आंखों की पुतलियां उबलाती हैं, उसकी जबान लटक के बाहर आ जाती है। और बाद ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि जब फंदे से उतारा तो उसमें जान थी, मरा नहीं था अभी तक तकलीफ में था वो। तो कौन सा कानून अच्छा है, इसका अच्छा है, इस्लाम का अच्छा है? भाई अब उसको सजा क्यों दी जा रही है, ताकि लोगों को इब्रत हो। तो इसी तरह इस्लाम ने जो खुलेआम डकैतियां करते हैं ना, कत्ल करते हैं, लोगों का माल लूटते हैं, तो अल्लाह ने उनकी जो कुरान में सजा बयान की, कुरान इसलिए कर रहा हूं कि ये ऐसी नहीं है जिसमें हनफी शाफी अहले हदीस का इख्तिलाफ हो। हमारे यहाँ जो लिबरल लोग हैं जब इस्लामी कानून की बात करो तो फौरन कहते हैं मौलवियों के तो बड़े इख्तिलाफात हैं। भाई ये तो कुरान ने बयान किया है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। ऐसी सलाह को तो मुल्क में नाफिज करना चाहिए ना कम से कम। एक तो तालीम की बहुत कमी है हमारे यहाँ। अभी हमारी दुबई में मुलाकात हुई, हमारे जो मेज़बान थे अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बार बार उसको रिपीट किया। मुल्कों के तजर्बे होते हैं ना इंसान को, सबसे बड़ी जो नहुसत है ना हमारी एजुकेशन की कमी है।
स्कूलों की कमी की बात नहीं कर रहा, आपने स्कूलों का एजुकेशन समझना शुरू कर दो। वो तो रंग के डब्बे बच्चों को देखा होगा आपने घर में, केले में पीला रंग और सेब में, ये एजुकेशन है? ये लोग बना रहे हैं नीला, ये टोपी ड्रामा है, इसको एजुकेशन नहीं बोलते, इससे कुछ भी पैदा नहीं होगा। इंग्लिश वो इंग्लिश भी इनको स्कूलों में इसलिए आती है, माहौल इंग्लिश का दिया जाता है। वो तो आप लंदन में छोड़ दो, अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। वो इंग्लिश को बच्चे माँ बाप समझो हमारा बच्चा माशाल्लाह हाई प्रोफाइल एजुकेटेड है, जबरदस्त माशाल्लाह। एजुकेशन की कमी है, तालीम की कमी है। तालीम चाहे दीनी हो या दुनिया भी हो, इंसान को ना मिशोर करती है, थोड़ा शोर पैदा करती है, पढ़ लो, ठीक है ना। देखो सिर्फ फेसबुक के किसी की तकरीर पर एतमाद मत करो, थोड़ा सा जो किताबी आदमी है ना उसे पढ़ने का शौक पैदा हो जाता है। किताबों की तो सेल ही खत्म हो गई है। डाकू पे ये बात हो रही थी कि उसको शरीयत ने एक दफा मोहलत दी है कि गिरफ्तारी से पहले अगर तौबा कर ले, और तो सिर्फ वो तौबा तो अल्लाह कबूल करेगा, लेकिन पब्लिक जब कबूल करेगी जब आसार से जाहिर हो जाए, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं फिर ये सजा नहीं है। लेकिन जो उसने हुकूक लिबाद जाया किया उसकी सजा फिर भी मिलेगी, वो तौबा से माफ नहीं होंगे। जैसे डाकू ने किसी का कत्ल कर दिया, अब क्या है कि वो 6 महीने अभी गिरफ्तारी हुई नहीं थी और उसने तौबा कर ली, तो अब डाकुओं वाली सजा तो नाफिज नहीं होगी। लेकिन जिस बंदे को मारा है उसको किसास का इख्तियार बहरहाल बोलो भाई रहेगा, किसास का हक उसको रहेगा। भाई तुम्हारा बंदा मारा है, तौबा कर लिया आखिरत में नहीं, लेकिन तुम्हारा हुकूक लिबाद है ना, ये तो तुम्हारा बंदा मारा तुम इसको मार सकते हो, तो ये रहेगा। और अगर गिरफ्तारी के बाद उसने तौबा की है फिर तौबा कबूल, आखिरत में फिर भी याद रखो दुनिया की सजा नाफिज, आखिरत की तौबा तो हर वक्त कबूल है, कुछ भी कर ले आखिरत में तो अल्लाह माफ कर देगा। दुनिया के काम और हैं। तो मैं इसमें मैंने बात शुरू की थी कि देखो जराइम के बारे में हमें पहले तो ये देखना है कि अल्लाह की नजर में हम किसी को मुजरिम करार दे रहे हैं शरीयत की रोशनी में ना, तो उसमें पहले तो ये देखना है कि अल्लाह की नजर में ये जुर्म कितना बड़ा है। नंबर 2, जब इस जुर्म से कोई तौबा का ऐलान कर दे तो शरीयत क्या कहती है कि उसमें तजस्सुस करो, देखो कि दिल से कर रहा है या ऊपर से कर रहा है। अगर शरीयत कहती है कि दिल से कर रहा हो या ऊपर से कर रहा हो, आपको इतनी गहराई में जाने की इजाजत नहीं है, तो आपको यही फैसला करना है कि ये तब्दील हो चुका है। आप माजी पे आप उसको ताना नहीं दे सकते। लेकिन कुछ जराइम इस नौयत के हैं जिसमें मुआशरे को नुकसान है, जैसे करप्ट सियासतदान होते हैं, करोड़ों रुपए खा गए, वो मैंने तौबा कर ली, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप रोजी की जमात में निकल जाएं, पैसे वापस करें जो आपने खाए हैं, ठीक है ना, पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। तो जो इस नौयत के जराइम होते हैं, इसी तरह याद रखो बात जराइम इस नौयत के होते हैं कि अगर उनको हाईलाइट ना किया जाए तो वो फ्रॉडी आदमी दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। आपको याद है कोयटा में वो जो नैब के कोई ऑफिसर थे, उनका कोई स्कैंडल सामने आया था किसी खातून के साथ ना, और उसकी खुफिया वीडियो लीक हो गई थी। तो मैंने उनकी सफाई में बयान किया था कि अगर एक आदमी ने गलत किया है, निजी मामला है उसका, तो उसको छुपाना चाहिए। लेकिन वो क्लिप मैंने हटवा दिया, इसलिए हटवाया कि मुझे पूरी सूरत हाल मालूम नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये होता है ना किसी का मामूली जुर्म हो तो एकदम लोग फैला देते हैं अपनी वो एक दुश्मनी निकालने के लिए। लेकिन जब लोगों ने मुझे बताया कि वो तो एंटी करप्शन खत्म करने के लिए था ना, और उस खातून की मजबूरी से नाजायज फायदा उठा रहा था, तो ऐसे लोगों को जुर्म को हाईलाइट करना चाहिए। क्योंकि आपको जिस जगह पे बिठाया गया है उस जगह पे आपको इसलिए बिठाया नहीं, आपको तो मुआशरे की इस्लाह के लिए बिठाया गया है ना। और आप जैसे थाने में कोई शख्स जाए, कोई खातून चली जाए एसएचओ के सामने कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, आप प्लीज मेरी मदद करें, और अल्लाह न करे कोई एसएचओ उस पे गलत नजर डाले और उसकी कुर्सी से नाजायज फायदा उठाए, एक आम आदमी में और उस वक्त की सिचुएशन में बोलो भाई एक आम आदमी का किसी से इलीगल ताल्लुक गलत है, अगर वो सामने आ गया तो छुपाने का हुक्म है, हाईलाइट करने की बात नहीं। लेकिन एक आदमी को हुकूमत ने बिठाया ऐसी जगह पर है कि उसका काम है ये कि वो लोगों के साथ ताउन करे, तो वो ऐसे मजबूरी से गलत फायदा उठाएगा, तो फिर उसको हाईलाइट किया जाएगा। या तो मैं बिठाया इस काम के लिए, वजह उसकी अगर आप उसके जुर्म को नहीं उठाते, लोगों के सामने नहीं लाते, तो आज एक औरत को बर्बाद किया उसने, कल 10 औरतों को बर्बाद करेगा। वो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जैसे रूहानी आमिल भी ऐसा करते हैं, बाज़ रूहानी आमिल करते हैं कि वो भी खवातीन तावीज़ के बहाने जाती हैं और उनसे मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, उनकी मजबूरी से नाजायज फायदा उठाते हैं। ऐसे शख्स को लाना चाहिए चैनल पे, ठीक है ना। इसका गुनाह छुपाने का हुक्म नहीं है, इसको तो लाओ फौरन चैनल पे नंगा करो, लोगों के सामने बयान कर दो, इसको बताओ देखो ये क्या मज़हब के नाम पे औरतों के साथ क्या कर रही है। बाकी किसी का निजी मामला हो भाई, कोई जितना बड़ा जुर्म कर ले तो अल्लाह सत्तार है, सत्तारी को पसंद करता है। जितना दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालोगे उतना छुपाओ जितना अपने ऐबों को छुपाना चाहते हो। और उसके बारे में हदीस में आता है ला तुज़हिर शमाअत अल अखी, किसी की मुसीबत पे देख के खुशी का इजहार मत करो, इसका इम्कान है कि अल्लाह उसे उस बुराई से बचा ले और तुम पर शैतान मुसल्लत हो जाए। तो हमने देखा है जो लोग किसी को गुनाह पे देख के मजाक उड़ाते हैं ना और उसको लोगों के सामने बयान करते हैं, हमारी जिंदगी के तजर्बे में वो मरने से पहले गुनाह में मुब्तला जरूर होते हैं और अल्लाह उनको भी लोगों के सामने जलील कर देता है। तो इसलिए जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक चीज का बता दिया, हम उसी के मुकल्लफ हैं, फिर लोगों के सामने उसको उछालना हमारी जायज नहीं है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मेरा बयान शुरू कहां से हुआ था ताकि मैं उस टॉपिक पे लाके खत्म कर दूं 1 मिनट के अंदर। हाँ, नबी के पैरोकार पागल नहीं होते, लगते हैं बाज, वो होते नहीं है, और बाज वाकई होते हैं क्योंकि वो मुकम्मल पैरवी करते नहीं। आधा इस्लाम शादियों वाला 4 शादियां इस्लाम से ले ली और अदल वाला हुक्म इस्लाम से नहीं लिया। तो इस पे मैं कुछ मिसालें दूंगा अगले हफ्ते इंशाल्लाह। ये बहुत अहम टॉपिक है और आज बहुत से लोग दीनदारों को देख के दीन से जो पीछे हटते हैं वो इसी अधूरे इस्लाम की वजह से हटते हैं। ईदी सेंटर में रोजाना पकड़े जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा यतीमों को खाना खिला रहे हो, उधर अपने छोटे भाई की विरासत है भाई दे नहीं रहे। लोग कहते हैं यार एक तरफ इनकी हजूमरे खत्म नहीं हो रहे हैं, रोजाना बकरे काट के अब्बा की विरासत से, जिसमें यतीम भाई का आता है, बहन का आता है, बकरे भी कट रहे हैं, दावतें भी हो रही हैं, तो ये आधा इस्लाम है ना। और भाई जो यतीम घर में है, जो आपका छोटा भाई है, उसका हक पहले है, ईदी सेंटर का हक बाद में। जो बीवी बच्चे आपके घर में उनसे पहले तमीज से बात करो, दोस्त अहबाब बोलो ना, क्या हो गया। मैंने कई लोगों को देखा दोस्तों में बैठेंगे ना, ढक्कन के बाहर बैठा है दोस्तों के साथ, अक्सर ऐसे ही होता है, और करके बात करो यार बड़ा मजा आया, जैसे घर में आएगा ऐसे लगेगा चंगेज खान की औलाद है, हकीकत सींग लगाने की देर है बस, घर में एकदम आती सीरियस बैठ जाएगा ना एकदम। बेगम ने कोई बात की तो एकदम डांट लगा देगा उसको, ना बाप से बात कर रहा है ना बच्चों से बात कर रहा है तमीज से, और आता ये चीज़ तोड़ फोड़। तो ये अब अखलाक पे बयान बहुत सुने में, तो भाई अखलाक पे जब आपने बयान सुने हैं तो अखलाक सबसे पहले किसके साथ है? वो तो समझ लो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, अजीब बात है, इनसे बात नहीं हो रही तमीज से, और उधर दोस्तों के साथ बहुत अच्छे, बॉस के साथ तो बहुत ही अच्छे अखलाक हैं इसके, और कस्टमर के साथ तो पीछे चला जाता है। कस्टमर आ जाए ना, देखो ना आप दुकान के करीब से गुजर रहे हो तो वो दुकानदार कैसे बुलाता है, हाँ भाई सूफी साहब, जिसको देखेगा डिजाइन का उसी हिसाब से बुलाएगा उसको। मुझे देखा बोला हाँ भाई सूफी साहब, कोई खातून हाँ जी बाजी 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 करना शुरू, आंटी आंटी नहीं बोलेगा कभी, आंटी नहीं बोले, बाजी बहन सिस्टर गुजरने नहीं देंगे, आइए बैठिए तो सही, बैठे फिर एकदम थान के थान निकाल के कपड़े के, वो सारी दुकान आदमी वैसे ही नफसियाती हो जाता है यार, ये लपेटेगा कैसे। आप बोल रहे भाई अभी नहीं खोल यार, तू इतने थान नहीं खोल, मुझे नहीं चाहिए, कह कोई मसला नहीं, ये भी वाला वो नीला वाला नीला वाला, यार मौलवी साहब ने देखा यूट्यूब पे नीले वाला नीला थान खोल देगा, अरे वो पीला वाला वो ऑफ वाला खोल दिया, ये इंप्रेशन डालते हैं ना, सारी दुकान खोल कर दी आपके सामने। अब भाई हमने आदमी तो शर्मिंदा हो जाता है यार, मुड़ के जाएंगे इस मूड से यार, बोलेगा मुझे लगता है मैं जाऊंगा तो बोलेगा तुम्हारा बाप खोल पिटेगा, मुझे क्या लगा होता है अब अगर मैंने नहीं खरीदा और मैं चला गया तो ये पीछे बोलेगा हम सभी तुम्हारा बाप खरीदेगा जिसमें मैंने थान खोल के रखे, यही कैफियत होती है नहीं होती।
तो कस्टमर के साथ भी अच्छे अखलाक रखें, मना नहीं कर रहे, ठीक है ना, चाय भी पिलाएं उसको, लेकिन उस चाय में जो है ना वो वाली चाय नहीं है। इसमें तो ये कि यार 5 रुपए इस पे खर्च कर लो, अगर इस चाय के बहाने ये इतने मीटर कपड़ा खरीद लेगा तो कोई ये चाय कोई महंगी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अखलाक किसके हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते हैं मुस्कुराते चेहरे के साथ। तो जो मुस्कुराते चेहरे के साथ घर में नहीं आ रहा तो वो जो मर्जी अखलाक की पप्पड़ बातें कर ले और अखलाक की रट लगा ले, अखलाक पे मज़ामीन लिख दे, है भाई, और दोस्तों के साथ सुबह शाम दावत करे, सेंटर में भी करे और ये भी करे वो भी करे, ओ भाई वो शरीयत उसके अखलाक को नहीं मानती है। बीवी बच्चे पहले हैं, माँ बाप का तो शरीयत ने कहा कि भाई जितनी मिठास लोगों से बातचीत करने में है ना, उससे कई गुना ज्यादा मीठा डाल के ना अपनी जबान में अब्बा से बात किया करो। और हदीस में आता है कि जितनी जब अब्बा से मिठास से बात करो ना, जितने मिठास से अब्बा से जो बात करो तो इतना मीठा लहजा हो कि आम पब्लिक से बात करते हुए जितने चम्मच चीनी के आपने इस्तेमाल किए हैं वो कई चम्मच आप चीनी के घोल दो अपने कलाम में, अपने कलाम में, अपने अल्फाज में कई गुना चीनी घोल दो। और बाप अगर बूढ़ा तो ठीक ठाक चीनी डालो उसमें, अपने कलाम में कई चम्मच चीनी के 10 चम्मच चीनी के घोल के अब्बा से बात किया करो। और सही हदीस में आता है कि जब मां से बात करो ना तो अब्बा से बात करते हुए अपने कलाम में अगर 10 चम्मच घोले थे तो अम्मा से बात करते हुए 30 चम्मच चीनी डालो उसमें, 3 गुना नहीं आ रही बात। मन अहक्कुन नासी, सहाबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मन अहक्कुन नासी बिहुस्नि खुलुकी, या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक से किससे पेश आऊं मैं, बात करूं, सिर्फ बात नहीं, पेश लब लहजा भी नरम, और जो आपके चेहरे के और बाजुओं का जो असर है ना उसमें भी मिठास, हर चीज में मिठास। तो साहब ने पूछा, या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा किससे अच्छे अखलाक से पेश आऊं? आपने क्या फरमाया? अपनी मां से। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सुम्मा मन, मां के बाद कौन है? ये नहीं पूछा कि और भी मां का हक है, मां के बाद वाला नंबर बताएं किसका है? आपने फरमाया उम्मुक, उसके बाद भी तुम्हारी मां। क्या मतलब? जितने चम्मच चीनी के मां से बात करते हुए अपने कलाम में घोले थे ना, अब जो चीनी के कुछ चम्मच बाकी रह गए हैं वो भी किसमें डाल दो, वो भी मां से कलाम करते हुए उसी में घोल दो। साहबी ने तीसरी मर्तबा पूछा, सुम्मा मन, या रसूल अल्लाह उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है? भला देखो यार कलाम की। साहबी ये नहीं गोया ज़बान, सुम्मा का मतलब होता है उसके बाद, यानी गोया साहबी कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह मां का हक पता चल गया, मां का नहीं पूछा, अब मां के बाद वाला बताएं मुझे। लेकिन नबी उनके सवाल को क्या कर रहे हैं? सवाल जो आपका जवाब है वो सवाल के मुताबिक नहीं है, नबी का जो जवाब है वो सवाल के मुताबिक नहीं है, और ये कलाम में ऐब है। जो पूछा जा रहा है आप उसके अलावा कोई और जवाब दें, ये अच्छा कलाम नहीं कहलाता। तो बताओ नबी ऐसा कर सकते हैं कि गलत बात करें? असल में ये बज़ाहिर अच्छा नहीं है, लेकिन ये जवाब बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, ये बताने के लिए कि तुम सवाल नहीं पूछोगे फिर भी मैं दूसरे नंबर पर तुम्हारी मां ही को डाल दूंगा। तो साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक से किससे पेश आऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुक, दूसरे नंबर पर भी कौन है? मां। फिर साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सुम्मा, चलो 2 दफा हो गई मां, अब बताएं मां के बाद कौन है, यानी मां के अलावा तीसरे नंबर पे कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उम्मुक, तीसरे नंबर पे भी कौन है? क्या अजीब अंदाज है मां का। तो मां से जब बात करे ना पिछ जाए इंसान, बहुत मीठा लहजा, बहुत मीठा लहजा। फिर साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सुम्मा मन, उसके बाद? फरमाया दोस्त नहीं, एयर होस्टेस नहीं, बॉस नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, फरमाया उसके बाद चौथे नंबर पे कौन है? अबूक। तो वही अखलाक तो यहां से शुरू हो रहे हैं। तो हमारा हिसाब किताब क्या है? बॉस के सामने कड़वी कसीली बर्दाश्त करेंगे, जॉब से निकालना दे, कस्टमर से बहुत अच्छी तरह से पेश आएंगे कि तिजारत में नुकसान ना हो। बाप के साथ देखो कैसा सलूक है, बच्चों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी शफकत थी। औलाद, हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं, मुझे मेरी मां ने बचपन में नबी के हवाले किया था, 10 साल की मेरी उम्र थी, यानी मैंने 10 साल नबी की सोहबत में गुजारे, खिदमत के लिए मुलाजिम बनके, एक बार भी आपने कभी ये नहीं कहा कि ये काम क्यों नहीं किया, या ये काम बोलो भाई क्यों किया। मैं मानता हूं मेरी अखलाक नहीं है, लेकिन सिम तो पता होना कि सीधा रास्ता है क्या। आज मेरे तो बहुत सफर होने लगे हैं, मुल्क से बाहर निकलो तो सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो अखलाक नजर आते हैं। मैं भी मलेशिया में था ना, कोई टक्कर लगा देगा ना आपके, खुद ही सॉरी कर रहा होगा भाई, किसी को चलते चलते आप गलती से उसकी गलती है, सॉरी गलती आपकी है, गलती आपकी हुई, आपको टक्कर लगी, सॉरी कौन कर रहा होगा? आप। यानी बचपन से स्कूलों में सिखाया जाता है सॉरी करना सीखो। हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, गाड़ी चला रहे हैं ना, आप भिड़ते हुए चले जाएं, हैं ठोकते हुए चले उसको, उसके बाद उतर के 5 और गालियां उसके ऊपर रख के निकलने आगे, ये होता है कि नहीं होता? धौंस जमाने के लिए ना। तो अब दुनिया के सामने जो इमेज जाएगा कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यही जाएगा ना। नमाजों में मस्जिदें क्या होती हैं? भरी हुई होती हैं, रमजान में तरावी से मस्जिदें भरी हुई, ज़कात सदक़ात बहुत है, बात करने की तमीज, ये इमेज जाता है दुनिया के सामने। अंग्रेज इतने सदक़ात तो खैरात नहीं करते, अंग्रेज नहीं करते। मैं फिर भी कहता हूं हम उनसे करोड़ों गुना अच्छे हैं, क्योंकि हम बहुत तमीज से बात नहीं करते, लेकिन बहुत सारे काम इंसानियत की खिदमत में ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन जो मैसेज दुनिया के उसको हमारे सदक़े थोड़ी नजर आते हैं। और भाई आप किसी से मिले, किसी यतीम ने क्या किया आपसे, थोड़ी बदतमीजी बात की, आपने 2 थप्पड़ लगा दिए उसके खींच के। लेकिन 20 यतीम ऐसे जिनकी आप कफालत कर रहे हो, उनको पाल पोस के बड़ा कर, उनको खिला रहे हो, तो 2 थप्पड़ लगाए गलत की, लेकिन वो 10 मिस्कीनों की जो खिदमत कर रहे हो वो बड़ी नेकी है ना, वो काम आएगी। लेकिन दुनिया के सामने वो 10 नहीं आ रहे जो घर के अंदर बंदे हैं, दुनिया के सामने तो आपका वो वही आएगा जो दुनिया के सामने है। तो मुसलमान का जो इमेज दुनिया के सामने जा रहा है वो ये नहीं जा रहा कि घरों में बीवियों को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, मां के पांव दबाते हैं, बाप के पांव दबाते हैं। जो दुनिया के सामने जा रहा है ये तो घरों में हो रहा है ना, ये तो दुनिया कौन देखता है कि अंग्रेज आके आपके घर में पूरी मां के पांव दबाते हो रहा है ना। जो इमेज जा रहा है कि इनको बात करने की तमीज बोलो भाई नहीं है। तो जो आधा इस्लाम जब लोगे अखलाक के मामले में, तो दुनिया क्या कहेगी आपको? पागल है ये पागल होते हैं, इनको तमीज नहीं है। तो पूरा इस्लाम मेरे भाई अगर कोई फॉलो करे तो खुदा की कसम इस्लाम से ज्यादा अट्रैक्टिव मजहब दुनिया में कोई है नहीं। दिल का सुकून भी मिलता है इंसान को, चाहतें तब्दील हो जाती है, अच्छी चीज इंसान की चाहत बन जाती है, बुराई से नफरत हो जाती है। तो ऐसे लोगों और इन्हीं जो इस तरह से नबी को फॉलो करते हैं ना, उन्हीं के बारे में अल्लाह ने फरमाया मान तदरीन मत रब्बिका बिमजनून, फरमाया ये दीवाने नहीं है, इनके साथ रह के देखो पता चलेगा दीवाने नहीं। तो जो लोग दीनदारों को दीवाना कहते हैं या तो वो खुद पागल होते हैं, या जिसको वो दीनदार कह रहे होते हैं वो दीनदार होता नहीं है।